Dear students, today we are going to discuss about the types or classification of contract. There are four types. Classification is available here. Number one, first one on the basis of validity और enforceability या कहें वैधता या प्रवर्तनशीलता के आधार पर. Second one on the basis of formation of contract. Third one on the basis of performance, and last four one other types. So first one on the basis of validity. Number one, a valid contract means या वैध अनुबंध वे अनुबंध होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के हिसाब से एज पर सेक्शन 10 में जो एलिमेंट्स हैं उन पक्षकारों के द्वारा किए गए हैं, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जैसे देयर इज सम एलिमेंट्स दैट इज फ्री कंसेंट, competency of parties, consideration, intention to create legal relation, contractual capacity of the parties, lawful object must be here, certainties must be here in contract, and possibilities of performance, whether it is to be executed in future. तो हम कह सकते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सेक्शन 10 के अनुसार जिनमें सारे के सारे वैध तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा वो समस्त ठहराव जो एनफोर्सेबल होते हैं या विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी में आते हैं. सेकंड वन, वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज अंडर सेक्शन 2G, एग्रीमेंट which does not have any existency in the eye of law. A void contract be enforced by law. An agreement to carry out an legal act is an example of void agreement. यानी agreement which are initially or prime facie have not enforceability. There are some absence of valid essential of any contract or agreement. So void agreement are initially not valid at primary stage. Initially these agreements are null and void. There is no obligatory or no obligations of parties is not existence in this agreement. यानी वो समस्त एग्रीमेंट जो प्रारंभ से ही नल एंड वॉइड होते हैं या पक्षकारों में उन एग्रीमेंट्स को करने की कैपेसिटी नहीं होती है या एक तरीके से विधि संगत या लॉफुल ऑब्जेक्ट जिनका नहीं होता है, वो सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, जिन्हें हम नल एंड वॉइड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं. देयर आर सम एग्रीमेंट ऑफ सच टाइप: एग्रीमेंट इन restraint of marriage, any restraint about the trading, any restraint about legal proceedings. यानी कि ऐसे ठहराव जो शादी, व्यापार, व्यवहार या वेजरिंग एग्रीमेंट, वो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं और जिनका रिजल्ट होता है प्रारंभ में ही वो पक्षकारों के मध्य लाइबिलिटीज़ या कमिटमेंट स्थापित नहीं करते हैं, या ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कराना या इन्फोर्सिबिलिटी एलिमेंट्स जिनमें नहीं होता है बेकार के ठहराव कहलाते हैं. नंबर थर्ड, दैट इज void contract under section 2J of the act defined as void contracts.
A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable. This makes all those contracts that are not enforceable by a court of law as void. Where we can say uh, agreement which contract that is due to unavoidable circumstances, it is not to be enforceable in future, या हम कह सकते हैं कि वो वाइड या व्यर्थ ठहराव होते हैं जिन्हें अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण इन्फोर्सेबल होने से रोक लिया जाता है या जिन्हें इन्फोर्सेबल नहीं माना जाता है. There are some conditions to stop the enforceability of this contract. For example, A agrees to pay B a sum of rupees 10,000 after 5 years against a loan of rupees 8,000. A dies of natural causes in 4 years. The contract is no longer valid and become void due to the non-enforceability of the agreed term. यानी वाइड कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थ ठहराव वो ठहराव होते हैं जो प्रारंभ में वैलिड होते हैं या जिनमें एनफोर्सेबिलिटी या प्रवर्तनीयता होती है, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण या सरकमस्टेंसेस के कारण वो परिस्थितियाँ उसे सीज कर देती है और वो एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थ अनुबंध बन जाता है और जिसकी एनफोर्सेबिलिटी अब होना ज़रूरी नहीं है. There are some difference between void agreement and void contracts. There are basic of difference. Number one, section. Void agreement consists under section 2G and void contract consists under section 2J. What are the meaning? Void agreement null and void at initially stage due to non-enforceable by law, but whereas the void contract due to some reasons or unavailable itself lost enforceability in future. Third one, share of validity. Void under void agreement not present here. It is null and void at beginning, whereas valid contract, it is valid at initial stage, but due to happening of some events, it become void. 4.1 difference based origin or void ab initio. It agreement, void agreement, it is null and void at beginning, but whereas the void contract, it is become void at the time of execution of performance. रिसिचुएशन या कह सकते हैं प्रत्यास्थापना, यानी जो वाइड एग्रीमेंट है वो शुरू से नल एंड वाइड होते हैं. पार्टी या पक्षकारों को कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि जो वाइड ठहराव या व्यर्थ ठहराव हैं वो पार्टी वैलिड बिगिनिंग में वैलिड होते हैं. पार्टी हैव राइट्स टू बैक देयर कंस्ट्रक्शन इफ एनी. यदि शुरू में वैलिड मानते हुए पक्षकारों ने कुछ व्यवहार या कंस्टिट्यूशन आपस में ले लिया है, तो उस स्थिति में यदि वो इन्फोर्सेबल होने से रुकता है, तो उस स्थिति में पार्टीज जो कंस्टिट्यूशन लिया है, जो पैसा लिया है, वो एक दूसरे को लौटाने के लिए कमिट होती है या बाध्य होती है, यानी कि पुनः की पुनः पहले वाली स्थिति में है. नेक्स्ट, पीरियड ऑफ वैलिडिटी. whereas void agreement, it is never valid, always void and null. But whereas the validity is concerned with void contract, it is valid
टिल इट डज नॉट सीज टू बी इन्फोर्सिबल। यदि कारण या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके कारण उसे रोक दिया जाता है तब तक वो नहीं हो जाते, तब तक वैलिड माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ मोर एसेंशियल, यानी इसमें जो एग्रीमेंट हैं वाई ठहराव हैं उनमें एक या उससे ज़्यादा अधिक एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो निष्पादन की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, वो सीज हो जाती है या परिस्थितियाँ उसे होने नहीं देती है। नेक्स्ट है prerequisites of contract. When the agreement is created, all the prerequisites of the contract are not satisfied, thus making it void। यानी शुरू से ही एक तरीके से prerequisites पूरी नहीं होती हैं, जो पूर्व शर्त हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, इसलिए शुरू से ही प्रारंभ से ही वैलिड void एग्रीमेंट व्यर्थ ठहराव हो जाते हैं। इसके अलावा बट वेयर इज इन द कॉन्ट्रैक्ट इन void कॉन्ट्रैक्ट enforceable into all the prerequisites have of the contract are satisfied, which due to certain circumstances subsequently become void। यानी कि शुरू में उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो वैलिड एलिमेंट्स होने चाहिए वो होते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली कुछ परिस्थितियों के कारण वो void हो जाता है और उसका एग्जीक्यूशन करना असंभव हो जाता है। Fourth one, voidable contract. Voidable contract is something different and peculiar. One of the parties of the contract alone will have an option to challenge it, repudiate or cancel the contract. Voidable contract है वो एक पक्षकार की इच्छा पर जिसे इन्फोर्सिबल होने से रोका जाता है या उस पक्षकार की मर्जी या उस पर डिपेंड होता है कि वो उसको इन्फोर्सिबल माने या उसे रोक देता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्षकार द्वारा अपने उसे कैंसिल कराने या उसे रद्द कराने के लिए या उसे वॉइड ठहराने के लिए एक तरीके से रोका जाता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जाता है। यानी कि एक पक्षकार सहमत होता है एग्जीक्यूशन के लिए और दूसरा पक्षकार उसे रोकता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर सेक्शन 2I of the Indian Contract Act defines a voidable contract according to section 2I of the Contract Act 1872. Voidable contract is an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others. The contract is said to be voidable. For example, when a consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused. Therefore, if the presence of any the consent is not freely, in the consent there is some undue influence, coercion or misrepresentation or fraud is taken, then the deceased party is or aggrieved party is liable to agreed party to say have power to reject the contract. Therefore, we can say the aggrieved party have right to seize the contract for execution. Next one, illegal agreement. An illegal contract is one of which is immoral or against law, यानी कि एक तरीके से अमर्यादित है या एक कानून के विरुद्ध है, वो एग्रीमेंट या ठहराव एक तरीके से इलीगल ठहराव कहे जाते हैं। और इसमें प्रोविजंस क्या है कि यदि पार्टी इलीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस पार्टी में इंडियन IPC एक्ट के तहत एक तरीके से पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती है, ऑफेंस माना जाता है। तो यानी कि वो सारे के सारे कृत्य एक्ट जिन्हें लॉफुल नहीं माना गया है या अगेंस्ट लॉ या अगेंस्ट मॉरल, वो सारे के सारे इलीगल या अवैध ठहराव या अनुबंध की श्रेणी में आते हैं। IPC के प्रोविजंस के हिसाब से यदि
पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है तो उन आईपीसी के हिसाब से पेनल्टी या ऑफेंस मानते हुए उन्हें सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। Unenforceable contract next is an unenforceable contract is a contract which is valid for all particular purpose until and unless its validity is challenges questioned. It cannot be enforced due to some technical defects. यानी कि हम कह सकते हैं कि वो समस्त कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध जो एक हद तक इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ एक टेक्निकल रीजन से या कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण से वो कंप्लीटली अनफोर्सेबल या परिवर्तनीय नहीं हो पाते हैं। जिससे आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के हिसाब से पार्टी पेमेंट कर देती है, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स या ज़मीन उसको हैंड ओवर करना, एक पार्टी द्वारा पैसे देना, लेकिन उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होता है, रजिस्ट्री की जाती है, उस रजिस्ट्री के पेटे जो पर्याप्त स्टैम्प ड्यूटी है उसका पे किया जाना ज़रूरी है। यानी कि स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से उस पर एक निर्धारित जो गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है उसको मैंडेटरी माना गया है और उसको चुकारा करने के बाद ही एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। There we can say about the MOA, Memorandum of Association, and Article of Association, which are to be registered under Companies Act 2013 at the ROC या Registrar of Companies Office। इस तरीके से आप बच्चे को गोद ले रहे हैं तो उस हिसाब से दत्तक जो एक्ट है उसके हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, there is three types of contract. Number one, express contract, the contract where there is express or conversation are called express contract। यानी हम कह सकते हैं लिखित express contract वो contract हैं जो लिखित या मौखिक हो सकते हैं। Second, implied contract is not oral or written contract, but it is a symbolic contract by where is the body language about the parties is saying one body language say that he makes an offer to another, and second body language या gesture say that he has communicate his acceptance through gesture। यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पक्षकारों के बीच में मौखिक या लिखित में कोई ठहराव या अनुबंध नहीं किया जाता है, बल्कि उनके बीच में एक जो एक्ट है या जो व्यवहार है वो उस व्यवहार के हिसाब से उनके बीच में एक संबंध बन जाता है। जैसे आप किसी ऑटो वालों को इशारा करते हैं और उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए कहते हैं, आपने ना तो कोई किराया तय किया है, आप रेलवे स्टेशन का बताते तुरंत बैठ जाते हैं, यानी आपके और ऑटो वाले के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है। एंड थर्ड वन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें हम अर्ध अनुबंध भी कहते हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जो कंडीशनल या सिचुएशनल होते हैं, एक तरीके से कानून या लॉज के द्वारा थोपे जाते हैं। इसमें पक्षकारों के बीच में जो एक नॉर्मल फिनोना है कि एक पक्षकार उस पर ऑफ़र देता है, दूसरा पक्षकार उस पर एक्सेप्टेंस होता है। इसमें वैलिड जो एक तरीके से एक्सेप्ट और ऑफ़र इनकी एब्सेंस के हिसाब से भी एक पक्षकारों के बीच में एक लाइबिलिटीज़ कानून के द्वारा लाइबल ठहरा दिया जाता है। तो उस हिसाब से पक्षकार अपने वचन का निष्पादन करने के लिए बाध्य होता है। यानी कि एक पक्ष, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉ ये मानता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास में कोई गलती से कोई सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाला आपके यहाँ सिलेंडर डिलीवर कर जाता है, तो उस स्थिति में आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपर पैसा दें, उसको जो बन रहा है वो पैसा। इसी तरीके से गलती से आपके आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा क्रेडिट कर देते थे, तो उस स्थिति में जबकि वो पैसा आपका नहीं है, तो उस स्थिति में आपकी लाइबिलिटी ये बनती है, ये जब बैंक आप कोर्ट के थ्रू नोटिस दे या आप एक तरीके से ह्यूमैनिटी के नाते आपकी लाइबिलिटी ये है कि आप बैंक वाले के वापस उसको पैसे को बताकर वापस उसको जमा करा दें बैंक के अकाउंट में।
तो इसमें आप हैं उन कंडीशंस 68 से लेकर 72 तक कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में यदि व्यक्ति किसी जैसे माइनर या किसी माइनर पर्सन है, उसकी कोई नेसेसरी फूड्स वगैरह या उसके शेल्टर के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा है, तो उस स्थिति में हालांकि जो माइनर पर्सन है उसको एक तरीके से कॉम्पिटेंस नहीं है वो पार्टी अनुबंध करने के लिए, लेकिन कोर्ट ये मानता है कि एक तरीके से इसने जो माइनर पर्सन है उसके सर्वाइव करने के लिए उसको नेसेसिटी वस्तुएं प्रोवाइड किए, तो उसी हिसाब से एक माइनर व्यक्ति की एक लाइबिलिटी यहाँ क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी निष्पादन के आधार पर हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके पक्षकारों के द्वारा अभी अभी अपने अपने वचनों का निष्पादन करना बाकी है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव या वे निष्पादित अनुबंध जिनके पक्षकारों के द्वारा अपने अपने वचनों का निष्पादन या परफॉर्मेंस कर दिया गया है, परफॉर्म कर लिया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फोर्थ वन, लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, number one, unilateral contract, bilateral contract and multilateral. Unilateral contract is performed by one party but the second party is performance is awaiting, is withheld, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक पक्षकार के द्वारा अपने वचन का निष्पादन कर दिया जाता है, दूसरे पक्षकार द्वारा वचन का निष्पादन करना बाकी है, अपने प्रॉमिस को पूरा करना बाकी है। इसके अलावा बायलैटरल, दोनों पक्षकारों के अपने अपने वचनों का या प्रोमिसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन करना अभी बाकी है, निष्पादन करना भी बाकी है। इसके बाद मल्टीलेटरल, जो एक तरीके से जब पक्षकार बहुत ज़्यादा हैं, दो या दो से अधिक हैं, सभी पक्षकारों के द्वारा अपने अपने वचनों का अभी निष्पादन करना शेष है। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।